अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाह अल इस्लाम। क़ाल अन्नबिय्यु सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मर्उ मअ मन अहब्ब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबे ईमा मददे या साहिबन नाहूरी कुल्ली नासगिरी फ़िस्सम्इ वल अअज़ा व हुस्निल बासगिरी व बितूलि उम्रिल्ला बिउम्रिन क़ासिरी या मजमअल खैरात अब्दुल क़ादिरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा। Respected Sadat and scholars, especially our guest from Calicut and Maulana Rashid Saadi Sahab, my dear elders, brothers and sisters. Alhamdulillah, we should be grateful to Allah for giving us this opportunity today, that we are here in a gathering which talks about the seerah of the most beloved of Allah, Rasul Kareem sallallahu alaihi wasallam. And mashallah, As-Sufa has organized this program for the whole month. In other words, As-Sufa has given us the opportunity to be in such a gathering where the one about whom Allah Ta'ala stated, Allah states, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. O Habib, we have exalted your remembrance for you. So the one whose remembrance has been already exalted, ये past tense है. ए हबीब, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया, तो अल्लाह ने तो बुलंद कर दिया, already raised. Then why do we praise? We do not praise because by our praise our Nabi's ranks are being elevated. No. We praise our Nabi for our ranks to be elevated by the barakah of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Dalil, very simple. Refer to any hadith book and take the chapter of salawat. In light of the hadith of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, when a person recites one salawat, let's recite Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin ma'adin al-judi wal karam wa alihi wa barik wa sallam. In light of the hadith, we got 10 rewards, 10 sins forgiven, 10 ranks elevated. So the barakah of remembering our Nabi is, you remember him once, Allah forgives your 10 sins. Allah elevates you 10 times and Allah grants you 10 rewards. Subhanallah. So if we make a habit of reciting 1000 salawat,
united with the beliefs of Sahaba. और अगर हमारा कोई बिलीफ सहाबा के बिलीफ से अगेंस्ट है, then we are not united with the beliefs of Sahaba. तो हमें यह देखना है कि हमारे जो अकायद है वो सहाबा के अकायद से मुत्तफिक है या मुख्तलिफ है. So let's go beliefs of Sahaba on ilmul ghaib of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. क्या सहाबा ने हमारे नबी के बारे में ये अकीदा रखा कि अल्लाह ने हुजूर को इल्म गैब दिया है? कुरान में तो है कि अल्लाह ताला ने फरमाया आलिमुल गैब, अल्लाह इज द नोअर ऑफ द अनसीन, फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, अल्लाह अपने सीक्रेट्स को किसी पर रिवील नहीं फरमाता, इल्ला बट मन इर्तदा मिन रसूल, अपने रसूलों को गैब का इल्म देता है. So now Allah declared this, that I do not reveal my secrets to anyone except for my messengers. This is in Surah Al-Jinn. And again Allah Ta'ala states, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, अल्लाह की ये शान नहीं कि आम लोगों को गैब का इल्म दे. वलाकिन अल्लाह यजतबी मिर रुसुलिही मन यशा, अपने रसूलों में से जिसे चाहे अल्लाह गैब का इल्म देता है. So it's confirmed Allah granted the knowledge of unseen to his Habib sallallahu alaihi wasallam and to his other prophets as well alayhimus salatu wat taslim. Today we see some people present the verse of the Quran to deny the ilm of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. They present the verse where Allah Ta'ala states, Qul, O my Habib, you tell, La aqulu lakum indi khaza'inullah wa la a'lamul ghaib. I do not say that I possess the treasures of Allah, neither I say that I possess the knowledge of the unseen. एक जगह अल्लाह ने फरमाया, ए नबी आप बता दीजिए कि मेरे पास खजाने नहीं हैं और मेरे पास गैब का इल्म नहीं है. और दूसरी जगह अल्लाह ही फरमाता है मैंने रसूलों को गैब का इल्म दिया है. यू सी अपैरेंट कंट्राडिक्शन. एक जगह रब फरमाता है ए नबी आप कह दे मेरे पास गैब का इल्म नहीं, और दूसरी जगह अल्लाह ही फरमाता है मैं रसूल को गैब का इल्म देता हूं. Apparently contradicts, but in reality there is no contradiction. Why? Here it means the real knowledge of Allah is by His self. Allah को किसी ने इल्म दिया नहीं है और रसूलों को देने वाला अल्लाह तबारक व तआला. तो हमारा अकीदा हुजूर का इल्म उनका अपना नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ. Then again, if I ask you this question, can our Nabi sallallahu alaihi wasallam ever go against the Quran? अगर कोई कहेगा कि हमारे नबी कुरान के खिलाफ गए, काफिर हो जाएगा. क्यों? अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, मेरे हबीब अपनी तरफ से नहीं बोलते, वही बोलते जो अल्लाह की तरफ से वही होती है. तो हुजूर कुरान के खिलाफ जा ही नहीं सकते. तब मुझे बताइए, हुजूर ने फरमाया अल्लाह के हुक्म से ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, मैं नहीं कहता कि मेरे पास खजाने हैं, लेकिन यही नबी फरमाते हैं बुखारी शरीफ में ऊतीतु मफ़ातिह खज़ाइनिल अर्द, ज़मीन के जितने ख़जाने हैं उन ख़जानों की जितनी चाबियां हैं वो सब मेरे हाथ में हैं. औ कमा क़ाल. So Allah says, O Nabi, you tell I don't possess the treasures. And our Nabi told this. Here our Nabi says, all the keys of the treasures of the earth are given to me. So here our Nabi has said one thing and here another thing. Apparently contradiction. लेकिन हकीकत में contradiction नहीं है. क्यों? इसलिए कि हुजूर ने जब ये फरमा दिया कि अल्लाह ने मुझे खजानों की चाबियां दे दी. ना उलमा है ये मिफ्ताह इज सिंगुलर, मफातिह इज प्लूरल.
एंड खजाइन ऑल्सो प्लूरल। तो जमीन में जितने भी खजाने हैं, उन खजानों की जितनी भी चाबियां हैं, सब के सब अल्लाह ने मुझे दे दिया है। सो नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्स, दैट आई डोंट पोजेस द ट्रेजर्स ऑफ अल्लाह? वेरी सिंपल. मीनिंग हियर वुड बी, ओ पीपल, आई हैव द ट्रेजर्स, but it is not at my own. This is given by Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oh people, I possess the knowledge of the unseen, but not at my own. Allah has bestowed me the knowledge of the unseen. इस हिसाब से आयत पर भी अमल हो गया, हदीस पर भी अमल हो गया। वरना इमाम बुखारी को माअज़ल्लाह मुशरिक कहना पड़ेगा कि कुरान के खिलाफ हदीस को बुखारी शरीफ में लिखा। अच्छा, अब सहाबा के अकायद भी हम देख लेते। ज़ाहिर हदीस है तो सहाबा के अकायद है ही, तो हम देखते हैं सहाबा के अकायद में से कुरान करीम की आयत सूरतुल अनफाल, 9th चैप्टर में सूरतुल अनफाल है। उसमें एक आयत करीमा का हिस्सा है, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। एंड अंडर दिस वर्स, not only Hafiz ibn Kasir. Who is Hafiz ibn Kasir? Student of Ibn Taymiyyah. So I am giving you the reference of the followers of Wahhabism, the masters of Wahhabism. Ibn Taymiyyah Wahhabis का इमाम है, और Ibn Taymiyyah का स्टूडेंट Ibn Kasir, इसको ये वहाबी फॉलोवर्स मानते हैं। तो हदीस तफसीर में लिखा है, किसने? हाफिज इब्न कसीर ने लिखा है। वंस Hazrat Harith bin Malik al-Ansari radiyallahu anhu came to the court of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, and our Nabi asked this question. See the highlighted one, red color. Kaifa asbahta ya Harith? Oh my sahabi, how did you find your day? आपने अपनी सुबह कैसे पाई? हजरत हारिस जवाब देते हैं, काल अस्बहतु मुमिनन हक्का। या रसूल अल्लाह, आई फाउंड माई डे एज अ परफेक्ट बिलीवर। इस हाल में मैंने सुबह की कि मैं कामिल मोमिन हूँ। अब हुजूर ने पूछा, उन्जुर मा तकुल, ए मेरे सहाबी, सी व्हाट यू से। फ़इन्न लिकुल्लि शैइन हक़ीक़ा, हर चीज़ की एक हकीकत होती है। फ़मा हकीकतु ईमानिक, ए मेरे सहाबी, तुम्हारे ईमान की हकीकत क्या है? What is the reality of your iman? Now Sahabi says, Ya Rasulullah, I refrain myself from worldly matters, and I devoted my nights and days for the sake of Allah. And Ya Rasulullah, now my position is ka'anni anzuru ila arshi rabbi bariza, मैं अल्लाह के अर्श को क्लियरली देख रहा हूँ। अल्लाह के अर्श को मैं क्लियरली देख रहा हूँ। एंड या रसूल अल्लाह, व कअन्नी अंजुरु इला अहलिल जन्नति यतज़ावरून फीहा। मफ़हूम क्या है या रसूल अल्लाह? जन्नती जन्नत में गुफ्तगू करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, मैं उनकी आवाज सुन रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। अनजुरु, आई सी द पीपल ऑफ जन्नत। एंड या रसूल अल्लाह, व कअन्नी अंजुरु इला अहलिन नार, मैं जहन्नमियों को भी देख रहा हूँ, उनके शोर को मैं सुन रहा हूँ। अब मुझे बताइए, आप में से, यानी जनरल पब्लिक में से, आप जनरल नहीं है, जनरल पब्लिक में से अगर कोई खड़ा होकर कहे कि कल क़यामत के बाद लोग जन्नत में जाएंगे, बट आई कैन लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल ऑफ जन्नत, विल यू एक्सेप्ट माई स्टेटमेंट? नहीं करेंगे। क्यों? अभी जन्नती जन्नत में गए नहीं तो आपने कहां से देख लिया? अगर मैं ये कहूं कि आई एम लुकिंग एट द पीपल ऑफ द हेल फायर, आई एम लिसनिंग टू देयर नॉइसेस, यू विल से इम्पॉसिबल। When people have not entered the fire, how can you listen to them? How can you see them? But Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam states, Ya Harith, arafta falzam. Haris,
आपने पहचान लिया, आप वाकई में सच्चे मोमिन हो, इस पर मजबूती से कायम रहो। क्या पता चला? द सर्वेंट ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी by the barakah of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam had the vision in this life of dunya that he is living in this dunya, yet is able to see the people of Jannah who will be entering after Qiyamah, and he is able to see the people of Nar who will be entering Nar after Qiyamah. So the thing which is going to happen after Qiyamah, it is seen in advance by whom? गुलाम ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब इब्ने कसीर ने तफसीर में यह हदीस लिख दिया, हुजूर के गुलाम के लिए इल्म गैब साबित हुआ तो नबी के लिए तो ऑटोमेटिकली साबित हो गया ना। लेकिन ये लोग नहीं मानते, इसलिए क्या किया, इंग्लिश वर्जन में से इस हदीस को पूरा हटा दिया। लेकिन उससे पहले देखें कि किन किन बुजुर्गों ने इस हदीस को लिखा है। इमाम मुअम्मर बिन राशिद ने अल जामे में भी लिखा है, और ये कब के स्कॉलर है? हिजरी 154। ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड इन हिजरी 154। 1300 years ago लोगों का ये बिलीफ था। एंड नेक्स्ट इमाम इब्ने मुबारक इन अज़्ज़ुहद, वफात हिजरी 180, 1300 years ago के स्कॉलर है। इमाम इब्ने अबी शैबा इन हिस मुसन्नफ हिजरी 235, हिल्यतुल औलिया इमाम अबी नुईम हिजरी 430, इमाम बैहक़ी इन शुअबुल ईमान 458, तारीख़ दिमश्क इब्ने असाकिर हिजरी 571 एंड तफसीर अल कुर्तुबी हिजरी 671। इसमें इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का नाम नहीं है, वो तो 200 years पहले था। हमने किन स्कॉलर्स को रिफर किया है? 800 साल, 900 साल, 1000 साल, 1100 साल, 1200 साल, 1300 साल पहले के स्कॉलर्स ने रिफर किया है। इसका मतलब all these scholars had this belief that the Sahabi had this vision in this dunya. He was able to see people of Jannah and he was able to see people of Nar. अब इससे जब हुजूर के सहाबी का इल्म साबित हुआ तो नबी का तो बदरजे औला साबित हो गया। लेकिन इब्ने कसीर का इंग्लिश वर्जन, फॉर योर रिसर्च पर्पस गो टू अ वहाबी पब्लिकेशन हाउस एंड आस्क फॉर ओरिजिनल तफसीर इब्ने कसीर इन अरबिक एंड आस्क फॉर द टेम्पर्ड वर्जन, एब्रिज वर्जन इन इंग्लिश, ऑल्सो इन अरबिक. You will find that hadith in the original Arabic version, but in the new Arabic version and in the translation you will not find this hadith. See, ulaika humul mu'minuna haqqa, ayat is mentioned, but that hadith is taken off from the English version. इसका मतलब क्या हुआ? तफसीर की किताब से हदीसों को चोरी किया है, हटा दिया है। Now it's your decision. जो आदमी हदीस से खेलता हो, हुजूर की हदीस को छुपाता हो, जबकि उनकी किताब में है, इब्ने कसीर में, जो नबी की हदीस को अपने मतलब के लिए छुपाता हो, हम उसको अपना इमाम कैसे बनाएंगे? We will not believe him, we will not pray behind him, and we should not listen to them. Why? They are doing fabrications with the hadith of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. See the next one. A sahabi of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam who was a poet sahabi, and you know a very famous poet is Hazrat Hassan bin Thabit radiyallahu anhu. We have the names of about 32 poet sahaba who were praising Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. One of them is Hazrat Suad ibn Qarib radiyallahu anhu. What does he say? And this is also recorded in Tafsir ibn Kasir, Suratul Ahqaf, verse number 29. Verse number 29 Suratul Ahqaf के तहत हजरत स्वाद बिन कारिब की एक पोएट्री इब्ने कसीर ने लिखा है। उसमें देखे 4th लाइन, फ़अशहदु अन्नल्लाह
ला शैअ गैर, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। एंड या रसूल अल्लाह व अन्नका मअमूनुन अला कुल्ली गाइब, Allah has made you the trustee for the all unseen. अल्लाह ने आपको तमाम गैब का इल्म अता फरमाया। कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल। व अन्नका मअमूनुन अला कुल्ली गाइब, अल्लाह ने आपको हर गैब का इल्म दिया है। जितना अल्लाह ने चाहा वो सब का सब अल्लाह ने आपको दे दिया है। अब ये हदीस तफसीर इब्ने कसीर में है और सहाबी हुजूर के सामने पढ़ते हैं। हुजूर को कहना चाहिए था कि मैंने तो कह दिया ला अअलमुल गैब, मेरे पास गैब नहीं है। ऐ सहाबी, तुमने ये शेर कैसे लिख दिया, कैसे पढ़ दिया? ये तो कुरान के खिलाफ है। आपने कैसे ये अशआर कहे, ये शिर्क है? नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको एक्सेप्ट फरमाया। क्यों? इसलिए कि हुजूर ये फरमाना चाहते हैं कि जो मेरे पास गैब है मेरा अपना नहीं, अल्लाह ही ने दिया है। और या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको तमाम गैब पर ट्रस्टी बनाया है। व अन्नका मअमूनुन अला कुल्ली गाइब। हाउ क्लियर दिस इज, एंड दिस इज रिकॉर्डेड इन तफसीर इब्ने कसीर एंड सी अदर रेफरेंसेस। मौजम अबी आला, वफात हिजरी 307, 1100 years ago। अल अहादीस तवाल लित्तबरानी, इमाम तबरानी, a great scholar of the hadith, हिजरी 360, 1100 years ago। दलाइलुन नुबुव्वह बाय इमाम अबी नुईम, हिजरी 430। मारिफतुस सहाबा बाय इमाम अबी नुईम, हिजरी 430। एंड तारीख दिमश्क बाय इब्ने असाकिर, हिजरी 571। अब आप मुझे बताइए, 900 साल, 1000 साल, 1100 साल, 1150 साल पुराने बुजुर्गों ने इस हदीस को अपनी किताबों में लिखा। इसका मतलब सहाबा का अकीदा ये था कि अल्लाह ने हुजूर को गैब का इल्म दिया है। हम भी ये मानते। सो वी आर फॉलोइंग सहाबा इन दिस बिलीफ, एंड द वहाबी फॉलोअर्स हु डिनाई द नॉलेज ऑफ द अनसीन फॉर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं कि हम सहाबा को फॉलो करते हैं। इन रियलिटी आर दे फॉलोइंग सहाबा? अमल में फॉलो करना फॉलो नहीं है, अकीदे के साथ अमल में फॉलो करना फॉलो। आप सहाबी के अकीदे के खिलाफ जाओ और सहाबी के अमल पे अमल करो, ये फॉलोइंग नहीं है। जो अकीदा सहाबा का था उसको मानना, ये फॉलोइंग। अब देखते हैं इंग्लिश वर्जन, सूरतुल अहकाफ, वर्स नंबर 29। व इद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्न यस्तमिऊनल कुरान। इस आयत के नीचे सिर्फ ट्रांसलेशन लिखा है, उस हदीस को, पोएट्री को हटा दिया है। सो यू विल नॉट फाइंड इन द इंग्लिश वर्जन ऑफ तफसीर इब्ने कसीर। क्या पता चला? हुजूर का इल्म साबित हुआ, इन्होंने हदीस हटा दी। सहाबी की वुसअत नजर साबित हुई, इन्होंने हदीस को हटा दिया। जो आदमी हदीस से खेलता हो, क्या हम उसको इमाम बनाएंगे? क्या उसका बयान हम सुनेंगे? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, बिलीफ्स ऑफ सहाबा ऑन द हियरिंग एंड द स्पीच ऑफ द डिसीज्ड। दुनिया से किसी का इंतकाल हो गया, वो सुनते हैं, वो बात करते हैं। सहाबा ने क्या बिलीफ रखा कि मैयत सुनता भी है और बात भी करता है। पहले देखे कि वहाबी क्या कहता है, मैयत नहीं सुनती। आयत पेश करते हैं, फ़इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ओ प्रॉफिट यू कैन नॉट मेक द डेड हियर, व्हेयरएस द इमाम इब्न कसीर सेड कि यहां मुर्दा मुराद नहीं है, यहां मौता से मुराद कुफ्फार है। Allah is referring to the kuffar as mauta and not the people who left this world. ये मैं नहीं कहता, इनका इमाम कहता है। अब आयत करीमा, इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्मऊन वल मौता यबअसुहुमुल्लाह सुम्मा इलैहि युरजऊन। इस आयत के तहत आप देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत उमर इब्न खत्ताब से, जब हज़रत उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि या रसूल अल्लाह,
बदर में जो काफिर मर गए थे उनसे आप बात करते हैं, क्या ये मुर्दा सुनते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लदी नफ्सी बियदी, उस रब की कसम जिसकी कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मा अंतुम, तुम उनसे ज्यादा सुनते नहीं जो मैं कहता हूं। जो मुर्दा सुनते हैं तुम उनसे ज्यादा नहीं सुनते। तो काफिर मैयत को सुनने की ताकत अल्लाह ने दी, और यह हदीस बुखारी में भी है। काफिर की ताकत सुनने की बढ़ जाती है मौत के बाद, तो मोमिन की ताकत क्या नहीं बढ़ेगी? और मोमिन में अल्लाह के औलिया की ताकत, उसको शिर्क क्यों कहते हो? फिर इसी इब्ने कसीर में दूसरी हदीस देखे, मा मिन अहदिन, कौन फरमा रहे हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हु। हु इज ही? कजिन ब्रदर ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाहु अन्हुमा सेस, मा मिन अहदिन यमुर्रु बिक़ब्रि अखीहिल मुस्लिम कान यअरिफुहु फिद दुनिया। जो भी शख्स अपने मुसलमान भाई की कब्र पे जा रहा है, जिसको वो दुनिया में पहचानता था, और उसको सलाम करता है, इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूहहु हत्ता यरुद्दा अलैहि सलाम, अल्लाह ताला उस मैयत को ताकत देता है कि वो मैयत इसके सलाम का जवाब देता है। आप कब्रिस्तान पे जाएं, अपने बाप दादा नानी नाना नानी रिश्तेदार की कब्र पे जाके आप सलाम करें, आपका सलाम वो सुनते हैं, मैं नहीं कहता, हदीस में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, कब्रिस्तान आप गए हैं, अस्सलामु अलैकुम बोलते हैं, हदीस कहती है कि वो जवाब देते हैं। क्या आपने जवाब सुना? आम लोग जवाब नहीं सुनते। हम कौन कहलाते हैं? जिंदा कहलाते हैं। We are called as living people and they are referred as dead people. You call yourself a living person, yet you are unable to hear the salam of that person who is in the grave. And he being in the grave, you regard him as a dead person, he listens to your salam. Who is more powerful? The person living on the surface of this earth or on the ground, who is more powerful? In light of the hadith, after leaving this world, the powers of the रूह increases. तो जब increase है तो वो हमें सुनते हैं, हमारे अंदर वो ताकत नहीं जनरल पब्लिक की कि उनके सलाम को हम सुन सके। सुभान अल्लाह। और आगे बढ़ते हैं, एक और हदीस, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत कौन करते हैं? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा। इसका मतलब सहाबी का अक़ीदा, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी सहाबी, सैयदा आयशा भी सहाबिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मा मिन रजुलिन यज़ूर क़ब्र अख़ीही व यजलिसु इंदह, जो भी मुसलमान अपने भाई की कब्र की ज़ियारत करता है और उसके पास बैठता है, नॉट ओनली डूइंग ज़ियारत, इफ ही सीटेड नियर द ग्रेव, उस मैयत को सुकून मिलता है और वो मैयत सलाम का जवाब भी देता है। ये हदीस का मफ़हूम। मुझे बताइए, सुकून मिलने के लिए जिंदगी होगी तो सुकून मिलेगा ना मैयत को, और जिंदगी है तभी सलाम सुनते हैं और जवाब देते हैं। अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं करता, हुजूर की हदीस की रोशनी में, सहाबा के अक़वाल की रोशनी में। तो मुझे बताइए, जब आम मुसलमान को सुकून मिलता है, आम मुसलमान सुनता है, तो औलिया किराम क्यों नहीं सुनेंगे? तो अंबिया किराम की तो शान ही अलग, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, सुभान अल्लाह। और आगे बढ़े, किन किन लोगों ने इस हदीस को नकल किया? इब्ने अबी दुनिया, हिजरी 281, कितने साल पुराने? 1200 साल पुराने। अल इस्तिज़कार बाई इब्ने बर मालिकी, वन ऑफ द ग्रेट स्कॉलर ऑफ मालिकी मजहब, हिजरी 463, एंड आ ग्रेट इमाम सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह, हिजरी 505, a scholar 900 years ago. Imam Qurtubi in his kitab At-Tadhkira, Hijri 671, and the next
Imam al-Wahhabiyya Ibn Taymiyyah also quoted this hadith in his 3 kitabs. One, Iqtida as-Sirat al-Mustaqim, other kitab of Ibn Taymiyyah, Minhaj as-Sunnah, and the 3rd kitab of Ibn Taymiyyah, al-Majmu'a. तो तुम्हारे इमाम ने भी इसको नकल किया है। अजीब सी बात है, हमारे इमाम की नहीं सुनते, तुम्हारे इमाम को भी रद्द करते हो। तुम्हारे इमाम ने भी इस हदीस को अपनी किताब में लिखा है। एंड दैट इमाम who saw Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam not only in dream, जागते हुए हालत में 75 टाइम्स हुजूर को देखने वाले इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाहि अलैह। इमाम सुयूती मामूली आलिम नहीं है। हमारे नबी को 75 टाइम्स जागते हुए में दीदार किया है। हिजरी 911 पुराने बुजुर्गों में से इन्होंने भी अपनी किताब अल-हावी में, और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि अलैह who was a मुजद्दिद of 11th century, अपनी किताब अल-मिरकात में इस हदीस को लिखा है। अब बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा, लेकिन आपको इंग्लिश वर्जन में उस आयत के तहत ये हदीस नहीं मिलेगी। कौन सी हदीस? कि मुसलमान की कब्र पर जाकर सलाम करने से मुसलमान जवाब देता है, उसको सुकून मिलता है। ये आपको हाफिज इब्ने कसीर की इंग्लिश वर्जन में नहीं मिलेगी। अब मुझे बताइए, ये नजदी चोरी करते हैं कि नहीं? और किससे चोरी? हदीस से। हदीस को आपके सामने से छुपाते हैं। जो हुजूर की हदीस को छुपा कर कहे मुर्दा नहीं सुनता, जबकि हुजूर फरमाते हैं कि वो जवाब देता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं वो जवाब देता है। सईदा आयशा सिद्दीका फरमाती है वो जवाब देते हैं। तुम कहते हो नहीं देते, हम तुम्हारी सुने या सहाबा की सुने? So now it is clear the belief of Sahaba is the one what we believe. हमारा ईमान क्या है? मुसलमान कब्र में सलाम को सुनता है। जब मुसलमान सुनता है, जवाब देता है, तो औलिया किराम को बदरजे औला ताकत अल्लाह अता फरमाता। उस पर भी हदीस है, कभी मौका बना तो आइंदा इंशाअल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक, सूरत अत-तौबा, वर्स नंबर 105। हो सके तो इसको सब नोट कर लीजिए या बाद में प्रेजेंटेशन ले लीजिएगा, आपको इंशाअल्लाह काम आएगा। सूरत अत-तौबा वर्स नंबर 105, वक़ुल अमलू। Allah says to his Habib that, oh Habib, tell people, i'malu, amal karo, fasayarallahu amalakum, अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देखता है। आयत खत्म हो गई हजरत। वक़ुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम, इतना ही है? नहीं, व रसूलुहु, अल्लाह के रसूल तुम्हारे अमल देखते हैं। Who says? Allah says. Allah says that our actions are being seen by His Habib Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is not a statement of a scholar. Holy Quran, Kalam of Allah. Now they will say we are going word by word for Quran. Okay, come, this is also word by word. i'malu fasayarallahu amalakum. Allah looks at your actions. Wa rasuluhu, Allah's Rasul is looking at your action. Is that all? No. Wal mu'minun, the pious people also looks at your actions. अल्लाह ने औलिया किराम को भी हमारे अमल देखने की ताकत दी है। अब ये डायरेक्ट कुरानिक वर्स है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को तफसीर से समझने की कोशिश करते हैं। नजदियों की तरह अपनी मर्जी से समझने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह का देखना उसके ज़ाती तौर से देखना हुआ, और हुजूर का देखना अल्लाह ने हुजूर को ताकत दी तब देखते हैं। और औलिया किराम हुजूर के सदक़े में अल्लाह ने जितना उनको दिखाना है वो अल्लाह उन्हें दिखाता है। सो अल्लाह का देखना और नबी का देखना और औलिया का देखना, नबी के सदक़े में अल्लाह का देखना बियॉन्ड कंप्रहेंशन। वाई? एट हिज ओन, ही इज़ द मालिक, ही इज़ द रब, ही इज़ द खालिक। और हुजूर का देखना, अल्लाह ने जितना हुजूर को दिया, कितना दिया?
मैं नहीं कहता, ये भी तफसीर में है, बल्कि हदीस में है। मुस्लिम शरीफ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उरिदत अलैया अमालु उम्मती। उलमा मौजूद है, अमलु उम्मती नहीं है, मेरे एक किसी उम्मत का एक अमल दिखाया गया। उरिदत माने ऑलरेडी प्रेजेंटेड। Our Nabi says the entire actions of my ummah were presented before me. मेरी तमाम उम्मत के तमाम अमल, अमलु उम्मती नहीं, अमालु उम्मती, अमाल is plural. All the actions of my ummah were presented before me when 1400 years ago we gathering in As-Suffa was seen by Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Now be honest, be honest. Our Nabi says, actions of my ummah were presented before me. इसका मतलब हुजूर कैसे देखते हैं? अमल हम 1400 साल के बाद करते हैं, हुजूर ने एडवांस में देख लिया। हदीस। अब ये अकीदा शिर्क है तो इमाम मुस्लिम को मुशरिक कहो, बिकॉज रिकॉर्डेड बाई इमाम मुस्लिम। इमाम मुस्लिम को मुशरिक नहीं कहोगे, क्यों कहोगे? तो उनकी किताब पढ़ोगे कैसे, पढ़ाओगे कैसे? अच्छा, हदीस पढ़ते हो फिर भी नजर नहीं आता? You read hadith, you teach hadith, you don't refer to this hadith that our Nabi says that all the actions of my ummah were presented before me. इसको और आसान लफ्जों में मैं आपको समझाऊं। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, Allah has appointed one angel for my Rauda Sharif. किसके लिए अल्लाह ने अपॉइंट किया? डायरेक्ट हुजूर का तस्करा नहीं, हुजूर के रोज़े अनवर के लिए। For the blessed resting place of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, one angel has been appointed. And hadith says, even Nasiruddin Albani, who removed about 5,000 hadiths from the books of ahadith, he also says this hadith is sahih. और इस इब्ने कसीर में भी नासिरुद्दीन अल्बानी ने हदीस को हटाया, who died 20 years ago. तो 5000 के करीब हदीस को किताब से हटाने वाला अल्बानी ने भी इस हदीस को सही कहा है जो मैं बताने जा रहा हूं। हमारे नबी फरमाते हैं, हदीस का मफहूम, अल्लाह हैज अपॉइंटेड वन एंजल फॉर माई ग्रेव एंड अल्लाह हैज गिवन हिम सच पावर्स that he is able to listen to the voice of creation. All the creations of Allah, सिर्फ इंसान नहीं, क्रिएशन का लफ्ज है। तो अल्लाह की जितनी भी क्रिएशन है, डायरेक्ट हदीस से मतलब निकालते हो, आओ हम भी डायरेक्ट बात करते हैं। तो डायरेक्ट हदीस से और आयत से कहते हो हुजूर को इल्मे गैब नहीं, जबकि दूसरी हदीस से गैब साबित, दूसरी आयत से साबित। अगर डायरेक्ट ही चाहिए तो आओ हदीस में डायरेक्ट। हमारे नबी फरमाते हैं कि तमाम मखलूक की आवाज़ सुनने की ताकत अल्लाह ने उस फरिश्ते को दी जो मेरी कब्र के लिए खिदमत को अल्लाह ने रखा है। और दूसरी रिवायत, दुनिया में जितने इंसान हैं सब के नाम को वो फरिश्ता जानता है। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब उस फरिश्ते का काम क्या है? एक बार दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक। वो एक फरिश्ता जो हुजूर का डायरेक्ट खादिम नहीं, रोज़े अनवर का खादिम है। क़यामत तक जो भी दरूद पढ़ेगा, उनके दरूद को नाम के साथ और बाप के नाम के साथ हुजूर की बारगाह में वो फरिश्ता पेश करता है। इसका मतलब हम जितने बैठे हैं, हमारे नाम वो फरिश्ता जानता है, हम किसकी औलाद है वो भी वो फरिश्ता जानता है। अच्छा, दुनिया में इस वक्त कितने लोग दरूद पढ़ते हैं? सिर्फ मैंगलोर में असुफ़ा में आप दरूद नहीं पढ़ते, पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे दरूद पढ़ा जाता है। सो वन खादिम ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेट मी रिपीट, वन खादिम ऑफ द रौदा शरीफ ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज गॉट सच इमेंस पावर्स कि जापान में टोक्यो से दरूद पढ़ने वाले का दरूद भी अभी सुन लिया, मैंगलोर में पढ़ने वाले का भी सुन लिया, शंघाई में पढ़ने वाले का भी सुन लिया,
डरबन से भी सुन लिया, न्यूयॉर्क से भी सुन लिया, और ऑन द स्पॉट मदीने शरीफ में पहुंचाने की ताकत भी रखता है। सुभान अल्लाह। अब ये लोग इसलिए कहते हैं कि ये हदीस सही है, सही तो है, ये इसलिए कहते हैं, इनका कहना है कि हुजूर नहीं सुनते, फरिश्ते पहुंचाते हैं। The angels they present the salawat, our Nabi doesn't listen. We have two answers. One, tell me, my dear brother, I should not say my dear to those people just for the sake of understanding. You say prophet doesn't hear, angel only present. If the prophet doesn't hear, why do the angel present? जब हुजूर सुनते ही नहीं तो फरिश्ते पहुंचाते किसे हैं, सुनाते किसे हैं? हुजूर सुनते हैं तभी तो फरिश्ते सुनाते हैं कि या रसूल अल्लाह, सो एंड सो सन ऑफ सो एंड सो हैज रिसाइटेड सलावत अपॉन यू। और दूसरी बात, ये हमारे लिए इज्जत की बात है, ऑनर है कि ना सिर्फ हमारा नाम दरूद पाक की बरकत से हमारे बाप का नाम भी हुजूर के दरबार में किया लिया जाता है। So if you want this honor, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ma'adinil judi wal karam wa alihi wa barik वसल्लम। अब मुझे बताइए, हुजूर के रोज़े अनवर के खादिम में ये ताकत, मखलूक की आवाज़ भी सुन सके, मखलूक में इंसानों के नाम भी जानता है, बाप के नाम भी जानता है, और दुनिया के किसी भी खित्ते में एक दिन नहीं क़यामत तक जो भी पढ़ेगा सबका दरूद पहुंचाता भी है। खादिम हाजिर और नाजिर हुआ कि नहीं? खादिम की ताकत को मानते हो, मखदूम की ताकत को नहीं मानते। अरे जिनके रोज़े अनवर के लिए खादिम को ये ताकत अल्लाह ने दिया, तो मास्टर को कितनी ताकत अल्लाह ने दी होगी। अब इसको भी हदीस से समझते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया, और अरबी में माँ के बाद अगर इल्ला आता है ना तो वह कन्फर्मिटी का मीनिंग बताता है। क्या मतलब? जब भी कभी भी कोई भी मुझ पर सलाम पढ़ेगा, मैं जरूर उसके सलाम का जवाब देता हूँ। एंड हियर इन दिस हदीस डायरेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दैट मीन ही लिसन्स डायरेक्टली। मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता रुद्दा अलैहि सलाम। जब भी कभी भी कोई भी, मा मिन अहदिन, कोई भी मुझ पर सलाम पढ़ता है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बरकत। अच्छा, मैंने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम, आपने कुछ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा होगा, किसी ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद पढ़ा होगा, किसी ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ा होगा, किसी ने सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि पढ़ा होगा। अलग अलग लफ्ज़ों में पढ़े ना, सब एक तो नहीं पढ़े ना, डिफरेंट पढ़े ना। दुनिया में हर कोई डिफरेंट लफ्ज़ों में दरूद पढ़ता है, और हुजूर डिफरेंट लफ्ज़ों में सबका एक ही साथ सुनते हैं। लाखों करोड़ों लोग एक मोमेंट में हुजूर पर सलाम पढ़ते हैं, और हुजूर एक ही मोमेंट पे करोड़ों को सुनते भी है, करोड़ों को जवाब भी देते हैं। Now this is hadith, and we are talking direct hadith because these people want direct answers. Come, why don't you believe in this? Explicit words in the hadith. Why do you deny the powers of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam? Now if I say this, all of you have to answer me about your profession, not individually, all together. तो कोई कहेगा I am an engineer, कोई कहेगा I am a doctor, कोई कहेगा I am a businessman, कोई कहेगा I am expert in this profession, in that profession. एक ही साथ अलग अलग जवाब देंगे तो मैं समझ सकूंगा? If you speak individually, I should be able to understand. If you talk collectively and different answers, I won't be able to comprehend. लेकिन आप डिफरेंट वर्डिंग में दरूद पढ़ते हो, हुजूर सबको सुनते भी है, पहचानते भी और सबको जवाब भी देते हैं। कितनी क्लैरिटी है हदीस में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा करने के बाद सलाम का जवाब देते, मतलब क्या हुआ? हमारे लिए दुआएं देते हैं सलामती की।
तो जो नबी दुनिया से पर्दा करने के बाद सलामती की दुआ देते हैं, ए नजदियो तुम कैसे कहते हो हुजूर हमारे लिए दुआ नहीं करते? हुजूर तो सलाम का जवाब यानी दुआ ही तो हुआ ना। कितनी अजीब बात है, हदीस पढ़कर हदीस के खिलाफ अक़वाल। अब यहां देखिए, वक़ुल अमलू, अल्लाह ने फरमाया ए हबीब आप फरमा दीजिए लोगों अमल करो। फसयरल्लाहु अमलकुम, अल्लाह लुक्स एट योर एक्शंस, Allah's Rasul will look at your actions and my pious people also will. इस आयत की तफसीर में अगेन हाफिज इब्न कसीर एक हदीस नकल की है, इन्ना अअमालकुम तुअरदु अला अकारिबिकुम व अशाइरिकुम। दो हदीसें मैंने जमा की है, डिफरेंट वर्डिंग्स। मिनल अमवात, योर रिलेशंस who had left this world, your actions are presented to those people who are in the grave. Those who have left this world, they are presented with your actions. فَإِنْ كَانَ خَيْرًا, and if they see good actions from their family members, from their children, they become happy. وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ, and if they see sins of their children, sins of their family members, they pray to Allah. कौन दुआ करता है? हमारे वालिदैन, हमारे दादा दादी, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार क्या दुआ करते हैं? हदीस, अल्लाहुम्मा ला तुमितहुम हत्ता तहदियहुम कमा हदैतना, या अल्लाह मेरे इन औलाद को जब तक हिदायत ना दे मौत ना देना। So these parents, relatives of ours are praying for our hidayat when? After leaving this world. और कैसे? कमा हदैतना, या अल्लाह जैसे हमें हिदायत दी हमारी औलाद को हिदायत अता फरमा। लेकिन नजदी कहता है कि वो दुआ नहीं कर सकते। आई वुड से दे आर राइट, दे आर राइट। वही दुआ कौन करेगा? कमा हदैतना, हिदायत वाला दुआ करेगा। वो कहते कि अल्लाह जैसे हमें हिदायत दी इन्हें हिदायत दे। तुम अपने बाप दादा को मुशरिक मानते हो तो तुम्हारे लिए दुआ क्यों करेंगे? हमारे बाप दादा मोमिन थे तो हमारे लिए दुआ करते। अच्छा, जब माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन दुआ करते हैं तो औलिया किराम का दुआ करना कहाँ से शिरक हो गया? एंड दिस हदीस इज रिकॉर्डेड बाय हाफिज इब्न कसीर एंड इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह, वन ऑफ द 4 इमाम्स, वफात हिजरी 241, 1200 साल पहले के आलिम। एंड यू नो, Shah Waliullah Muhaddis Dehlvi Rahmatullahi alayhi has recorded this incident in his kitab Al-Insaf. And also Sayyidi Ala Hazrat has recorded an incident. One person came to the court of Imam Ahmad ibn Hanbal Rahmatullahi alayhi and asked, "O Imam, if a person has memorized 1 lakh hadith," मामूली बात है, किसी ने 1 लाख हदीस याद किया है, कैन ही डिराइव लॉस फ्रॉम द हदीस? हमसे कोई कहे कि आपको कितने हदीस याद है? मुझे 500 हदीस याद है, तो आप तो हदीस से मसला बयान कर सकते होंगे। आज का गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस 10-15 हदीस याद करके मसला बयान करते हैं। इमाम अहमद इब्न हम्बल से पूछा, हुजूर बताइए 1 लाख हदीस से किसी को याद हो तो क्या हदीस से मसला बयान कर सकता है? इमाम से ला नहीं, he is not capable to derive laws from the hadith, even if he has memorized 100,000 hadith. Now the question, number of hadith increased. Imam साहब, किसी को 2 लाख हदीस याद हो तो? फरमाया ला। इमाम साहब 4 लाख हदीस याद हो? ला। ठीक है, 5 लाख हदीस? अर्जू, आई होप कहा, हाँ नहीं कहा। तो जिसको 4 लाख हदीस याद हो वो भी विदाउट द हेल्प ऑफ फुक़हा हदीस से मसाइल बयान नहीं कर सकता। Who the hell are these people of today who memorize 10-15 hadith and say about the laws of Islam without referring to the imams? और इमाम अहमद इब्न हम्बल को 1 मिलियन हदीस याद थी। और अस-सुन्ना, इमाम अहमद इब्न हम्बल के बेटे ने अपनी किताब में भी इस हदीस को लिखा, हिजरी 290। इमाम तबरानी हिजरी 360, इब्न जौजी रहमतुल्लाहि अलैहि हिजरी 597, इमाम इब्न हजर अस्कलानी द कमेंटेटर ऑफ सही बुखारी
एंड इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई, इन सब ने इन हदीसों को अपनी किताबों में लिखा। लेकिन यही आयत 105 ऑफ सूरत तौबा इंग्लिश वर्शन में उन दोनों हदीसों को हटा दिया कि आपके रिश्तेदार आपके अमल को देखकर खुश होते हैं, गुनाहों को देखकर दुआ करते हैं, हटा दिया। क्यों? जब माँ बाप की दुआ साबित है तो नबी की तो बदरजे औला साबित हो गई, और ये हुजूर को दुआ देने वाला नहीं मानते तो माँ बाप की हदीस को ही हटा दिया, रिश्तेदार की हदीस को ही हटा दिया। अब सी द एनिमोसिटी टुवर्ड्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक चीज हमारे नबी के लिए नहीं मानते तो ये चाहते नहीं कि आप मानो। दे डोंट बिलीव, फॉर दैट रीजन दे डोंट वांट यू ऑल्सो टू बिलीव, इसलिए किताबों से निकाल दिया। और ये मेरा चैलेंज है, गो टू अ बुक शॉप टुमारो इटसेल्फ, दारुस्सलाम publication or any Wahhabi publication. Ask them for Tafsir Ibn Kasir, original version in Arabic, and see what I told is written or not, and ask them for the English version or Mukhtasar Arabic version. Refer to that and see, you will not find these hadiths. अब मेरा सवाल है, तुम्हारा इमाम इब्न कसीर हिजरी 700 में इंतकाल कर गया, तब से लेकर आज तक किसी ने उस किताब से हदीस को हटाया नहीं। नासिरुद्दीन अल्बानी कौन होता है हदीस को हटाने वाला? नासिरुद्दीन अल्बानी who died 20 years ago, who is he to remove the hadith when not a single scholar removed hadith from Ibn Kasir? देखा आपने, बिदअत ये है। हमको बिदअती कहते हैं, हदीसों को छुपाते हैं, हुजूर के ताकत को छुपाते हैं, सहाबा के इल्म गैब को छुपाते हैं, मुसलमानों की मैयत के वफात के बाद ताकत को छुपाते हैं। तो बिदअत तो ये करते हैं और हमें बिदअती कहते हैं। नेक्स्ट, बिलीफ्स ऑफ सहाबा ऑन प्रेइंग इन अ मस्जिद बिसाइड्स ग्रेव्स। उल्लाल शरीफ गए हैं आप? कासरगोड शरीफ गए? हजरत मालिक बिन दीनार बुजुर्गान दिन की बारगाह में जहां मजार है बाजू में मस्जिद है कि नहीं? नजदी क्या कहता है, अगर मस्जिद मजार के बाजू में है तो नमाज नहीं होगी, इसीलिए दरगाह तोड़ने बोलते हैं ना। हम ये कहते हैं, पहले मजार बनी या पहले मस्जिद बनी? आपके इंडिया में सहाबा ने मस्जिद बनाई, सहाबा ने बनाई, इसका मतलब ताबईन ने भी मस्जिद बनाई, उसके बाद औलिया किराम ने बनाया। मुझे बताइए, औलिया किराम ने मस्जिद बनाया क्यों? हमको अल्लाह की इबादत कराने के लिए बनाया ना। दे बिल्ट मस्जिद फॉर अस टू वर्शिप अल्लाह। और यही सहाबा हुजूर को इल्म गैब जानने वाला मानते थे, यही सहाबा या रसूल अल्लाह कहना जायज मानते थे, यही सहाबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत का मजा चखने के बाद हयात मानते थे। अगर ये अकीदा शिरकिया है तो वो सहाबा हमें अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद क्यों बना के देते? इसका मतलब क्या हुआ? आपके यहाँ मौलूद पढ़ी जाती है, मनकुस मौलूद है, सुबहान मौलूद है, बदरी मौलूद है। किन्होंने लिखा? हमारे बुजुर्गों ने लिखा। हद्दाद रातिब है, जलालिया रातिब है, किन्होंने लिखा? इमामुल अरूस ने लिखा, इमाम हद्दाद ने लिखा। क्यों लिखा? उसमें गौसे पाक का तस्करा है, अल्लाह का जिक्र है, हुजूर पर दरूद है, इस्तिग़फ़ार है और औलिया का तस्करा भी है। जो औलिया हमें औलिया का तस्करा कराने के लिए वजीफा दिए, वो ही हमारे लिए मस्जिद भी बना कर दिए। इसका मतलब नबी को प्रेस करना, औलिया को प्रेस करना शिर्क नहीं। अच्छा, हदीस में क्या क्या? लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह ने यहूदी और नसरानी पर लानत भेजी। क्यों? इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम, उन्होंने अंबिया किराम की कब्रों को मसाजिद बना लिया। दे मेड द प्लेसेस ऑफ, दे मेड द ग्रेव्स ऑफ द प्रोफेट्स एज प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग, कब्र को मस्जिद बना दिया किसने? यहूदी और नसरानी ने। नाउ यू ऑल आर एजुकेटेड पीपल, कब्र को मस्जिद बना दिया तो कब्र है या नहीं है? नहीं है ना। कब्र के ऊपर मस्जिद बना दी मतलब मजार नहीं है, मस्जिद बन गई है। सो हदीस apparently talking about a masjid which is over the grave,
and you are stopping us from a masjid which is besides the grave, not over the grave. You see the difference? हदीस मना कर रही है कब्र को मस्जिद बनाने से, बाजू में मना नहीं किया, लेकिन तुम हदीस को मिसकोट करके बाजू में है तो भी तोड़ने को बोलते हो मजार को। ये कौन सा इंसाफ? अच्छा, हदीस को हमने ज्यादा समझा या बुखारी शरीफ की शरह लिखने वाले इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने ज्यादा समझा? इमाम इब्न हजर अस्कलानी इस हदीस की शरह में फरमाते हैं कि दो मीनिंग्स हैं। डायरेक्टली विदाउट एनी बैरियर कब्र को फेस करके नमाज पढ़ना ये मना है। हम कभी भी मज़ार को फेस करके अल्लाह अकबर नहीं कहते, बीच में दीवार होती है, बीच में पर्दा होता है। और दूसरा मतलब क्या है? कब्र के ऊपर मस्जिद बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों से पाक है, ना मज़ार के ऊपर मस्जिद बनाते हैं, ना मज़ार को डायरेक्ट फेस करके नमाज पढ़ते हैं। तो दिस इज़ नॉट फिटिंग विथ आवर एक्शंस, लेकिन हम इनको बुखारी शरीफ से जवाब देते हैं। ये देखे बुखारी शरीफ में हदीस, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हु इज ही? सहाबी ऑफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सन ऑफ हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर इज एडवाइसिंग हिज खादिम हजरत नाफे रदियल्लाहु अन्हु दैट ओ नाफे, यू आर गोइंग टू सच एंड सच प्लेस, सी द हाईलाइटेड पार्ट, there is a masjid and near the masjid qabrani aw thalathatun. Near the masjid there are 2 graves or 3 graves. And he says the Prophet sallallahu alaihi wasallam offered prayer in that masjid which is near the graves. And oh Nafi, I also offered prayer. You are going to that area, you also pray there. Why? Because our Prophet has prayed there. Now this is in Bukhari Sharif, Kitabus Salah, Babul Masajidil Lati ala Turuqil Madina, the chapter of the masjid on the way to Medina in which our Nabi offered prayer. इस चैप्टर में बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, ऑनलाइन चाहे तो सर्च कर ले, और इसका इंग्लिश वर्जन बाय डॉक्टर मोहसिन खान, टेम्पर्ड वर्जन बाय डॉक्टर मोहसिन खान। आप देखें इसमें क्या लिखा है। Book of Prayer, volume number 1, book number 8, hadith number 471. See the highlighted part, because the screen is small, it is difficult for you to read. I will read for you, you take the presentation and read by yourself. Or Google search now itself, Bukhari, volume 1, book 8, hadith number 471. You will find that highlighted part. Narrated hadith is about the virtues, the various places on the way from Medina to Makkah where the Prophet sallallahu alaihi wasallam offered prayer is impossible to translate. क्या लिखा है? Impossible. Translate करना नामुमकिन है. We'll go back again. Qabrani. What is the meaning of that? 2 graves. Thalathatun, 3. 2 graves को ट्रांसलेट करना इम्पॉसिबल है। Thalathatun को ट्रांसलेट करना इम्पॉसिबल है। फयुसल्ली ज़ुहर फी ज़ालिकल मस्जिद, उस मस्जिद में ज़ोहर की नमाज अदा की। इज दिस इम्पॉसिबल टू ट्रांसलेट? फी ज़ालिका, उस मस्जिद में, क्या ये इम्पॉसिबल है ट्रांसलेट करना? चूंकि ये मजार के बाजू में मस्जिद में नमाज पढ़ने को मना करते और मजार को तोड़ना बोलते हैं, लेकिन बुखारी में यह हदीस मौजूद है कि मजार के पास हुजूर ने नमाज पढ़ी मस्जिद में, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने भी पढ़ी और हजरत नाफे को भी फरमाया। बिकॉज दिस इज अगेंस्ट देयर बिलीफ, व्हाट दे डिड, इंस्टेड ऑफ सेइंग वी डोंट वांट टू ट्रांसलेट दिस हदीस बिकॉज वी डोंट बिलीव इन दिस, they used the term impossible to translate. कितना बड़ा झूठ हुआ डॉक्टर मोहसिन खान। अरे 7000 हदीस तुमने ट्रांसलेट कर दिया और इस चैप्टर की हदीस को इम्पॉसिबल कहते हो। एंड द फनी पार्ट इज, इस चैप्टर में 8-9 हदीसें हैं, तो इस हदीस को छोड़ने के लिए पूरे चैप्टर को ट्रांसलेट करना इम्पॉसिबल बता दिया। कितनी बड़ी चोरी की इन लोगों ने।
यही वजह है कि हम वहाबियों से दूर हैं, हम नजदियों से दूर इसीलिए कि ये आपको हदीस छुपाते हैं. Even from Bukhari Sharif they hide the hadith from you. Now as the time goes very fast, let us focus on one more topic. Beliefs of Sahaba on the physical lives of Anbiya Kiram alayhimus salatu wa taslim. In this, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylam min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Verse number 1 of Surah Bani Israel. इस आयत के तहत हाफिज इब्न कसीर ने इस हदीस को लिखा. And Hafiz ibn Kasir records that Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam offered prayer in Masjidul Aqsa, and all the prophets of Allah offered prayer behind Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. In one narration, Jibril alayhi salam says, Ya Rasulullah, all the prophets whom Allah sent, उन्होंने आपके पीछे नमाज आज अदा की. And दूसरी narration says, our Nabi says, फजुमी अली अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, मेरे लिए नबियों को जमा किया गया और मैंने उन सब की इमामत की. तो हुजूर ने तमाम नबियों की इमामत कहाँ पर की? मस्जिद अक्सा में. कब की? शबे मेराज. अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, शबे मेराज तमाम अंबिया किराम मस्जिद अक्सा में मौजूद. हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मौत का मजा नहीं चखा, वो आसमान में है, वो भी आ गए. हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मौत को टेस्ट कर लिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने टेस्ट कर लिया, नूह अलैहिस्सलाम ने टेस्ट कर लिया ना. डिस्पाइट टेस्टिंग द डेथ दे वर प्रेजेंट इन मस्जिद अल-अक्सा. व्हाई? टू ऑफर प्रेयर बिहाइंड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. नाउ for them to be present in Masjid al-Aqsa before the appearance of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, they should know that our Nabi is about to come. उनको पता होना चाहिए कि हुजूर आने वाले हैं. मुझे 7:30 टाइम दिया गया फॉर एग्जाम्पल, आपको मुझे सुनना है. अमीन साहब ने अनाउंस कर दिया कि हाफिज एहसान विल बी अराइविंग एट 7:30 PM. If you are eager to listen to me, you will be here before that. इसका मतलब आपको अनाउंसमेंट मिल गया है कि मैं आने वाला हूं इस टाइम पे. ये खाली समझाने के लिए कह रहा हूं. वहां किसने अनाउंस किया कि हुजूर आने वाले हैं? Who made this announcement? Allah gave such knowledge to His prophets. Despite tasting the death, they knew our master, our imam is to appear. Let us go and welcome Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. And the best part is, who prayed behind our Nabi? Those who left this world. And Isa alayhi salam, who is still in this world, I mean in this dunya, he didn't taste it in this alam. So now the prophets who left this world offering prayer behind Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Prayer physically होता है ना, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी तो physically. अच्छा, मस्जिद अक्सा में अगर 124,000 about 124,000 नबी हैं, तो मस्जिद अक्सा में 1.25 लाख जमा होने की जगह तो नहीं है. लेकिन अल्लाह की कुदरत, अगरचे मस्जिद छोटी है, तमाम नबियों ने सफ में शामिल हो गए और हुजूर के पीछे नमाज अदा की. एंड फर्दर, हजरत मूसा अलैहि सलाम was seen on the way when Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam was traveling from Makkah Sharif to Masjid al-Aqsa. And this is in Sahih Muslim. Marartu bi Musa alayhi salatu wassalam. Allah's Nabi says, I saw Musa alayhi salam wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi. Aw kama. मैंने देखा मूसा अलैहि सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं. खड़े होने के लिए जिस्म का होना जरूरी है. Now in light of this hadith, all the prophets of Allah, after tasting the death, they are physically alive in their graves. With their physical body they pray in their graves, and with their physical body they are able to present, and they were present in Masjid al-Aqsa to offer prayer behind Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. How clarity is this?
तो तुम्हारे इमाम हाफिज इब्ने कसीर ने इस हदीस को नकल करके ये हमें बता दिया कि मेरा भी बिलीफ ये है कि अंबिया किराम विसाल के बाद हयात है। एंड आ नबी सेज, इमाम बैहक़ी रिकॉर्ड्स दिस, अल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून, all the prophets of Allah, they are alive in their graves and they offer prayer. Al anbiya ahya, our Nabi says prophets are alive and we say prophet is dead. Are we following the hadith? Why do you use the term dead for the prophet when our prophet himself said all the prophets are alive? The term ahya is in the hadith. So don't use the term dead. You can use the term they tasted the death on the command of Allah, and Allah granted their ruh to their bodies again after they tasted the death. Say they left this temporary world towards the permanent world. तो अच्छे अल्फाज में याद करो, मुर्दा क्यों कहते हो? हुजूर को मुर्दा कहना हदीस के खिलाफ है। क्यों? हुजूर ने फरमाया अंबिया हयात हैं, तुम कहते हो वी फॉलो हदीस, yet you act against the hadith. जब दूसरे नबियों को मुर्दा कहना मना है तो हुजूर को तुम मुर्दा कैसे कह सकते? और हुजूर के गुलामों को अल्लाह ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उनको मुर्दा ना कहो, डोंट से। एंड सूरा आल इमरान अल्लाह सेज डोंट इवन अस्यूम, सोचो भी मत कि शुहदा मुर्दा है, वो हयात है, उन्हें रिस्क दिया जाए। तो शुहदा के बारे में बोलने से भी अल्लाह ने मना किया, सोचने से भी अल्लाह ने मना किया। तुम कैसे बेवकूफ हो के हुजूर को मुर्दा कहते हो और किताबों में छापते हो द प्रॉफिट इज डेड एंड गॉन। और देवबंदियों ने तो यहां तक लिख दिया कि हुजूर मर कर मिट्टी में मिल गए। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। So they refer to the Quran and Hadith, yet they propagate against the Quran and Hadith. So my motive here is, all the followers of Wahhabism, if you are listening live now, pay heed. And if you are to listen later on, pay heed. We are referring to your books, the imams whom you follow. अगर ये अकीदा शिरक है तो इब्ने कसीर को मुशरिक कहो, इमाम मुस्लिम को मुशरिक कहो, इब्ने तैमिया को मुशरिक कहो, नहीं कहेंगे। इसका मतलब ये झूठे लोग हैं। So we politely invite them, come, do repent, come to the fold of Ahlus Sunnati wal Jamaah। इसलिए कि हमारा बिलीफ वही है जो सहाबा किराम का बिलीफ था। और आगे बढ़े, इमाम नसाई इन हिज किताब अस-सुन्ना हिजरी 303 इस हदीस को लिखा है। कौन सी हदीस? अंबिया किराम मस्जिद अक्सा में मौजूद। इमाम तहावी, वन ऑफ द ग्रेट इमाम ऑफ अकीदा, हिजरी 321। इब्ने असाकिर हिजरी 571। इमाम ज़हबी, अ फेमस मुहद्दिस, हिजरी 748। इमाम अस्कलानी हिजरी 852। इमाम सुयूती हिजरी 911। इन तमाम बुजुर्गों ने इस हदीस को नकल किया। लेकिन इब्ने कसीर के इंग्लिश वर्शन में ये हदीस को हटा दिया, that all the prophets were present in Masjid al-Aqsa, offered prayer behind our Nabi sallallahu alaihi wasallam। इंग्लिश वर्शन से हटा दिया है। कितनी बड़ी चोरी करते हैं ये लोग। अब एक बात, अंबिया किराम ने हुजूर के पीछे नमाज क्यों अदा की? What was the wisdom behind that? So these prophets of Allah are educating us that, oh people, we got nubuwwat because of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. We got risalat because of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. And we spoke about Allah's Habib during our worldly life in this dunya in front of our ummah. And oh people, we are created because of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Granted prophethood because of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Though we came earlier, he came as the last prophet, but the reality is he is the soul of all the prophets of Allah. So these prophets of Allah, by offering prayer in Masjid al-Aqsa, are showing that, oh people, though we came earlier, हम मुक्तदी है, इमाम तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, to show that our imam is Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is beautifully explained by Ala Hazrat Imam Ahmad Raza rahmatullahi alayhi in his Qasida al-Mi'rajiyya। नमाज अक्सा में था यही सिर
This was the secret in offering prayer in Masjidul Aqsa. What was the secret? Namaz Aqsa में था यही सिर्फ आया हो मानिए अव्वल आखिर, so that the meaning of अव्वल and आखिर to be apparent. कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे. All the prophets who had ruled in this world, they are standing out of respect behind Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. To show, oh people, though we came before, in reality he is the Imam, he is our master, he is the soul of all the prophets of Allah. इतनी clarity है hadith और tafsir की किताबों से. But these people has taken off these hadiths from the books of ahadith, from the books of tafasir. और अगला टॉपिक तो बहुत इंटरेस्टिंग है, beliefs of Sahaba on seeking help from Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Lekin unfortunately my time is over. So if you permit, want to continue? Okay, 5-10 minutes I'll try inshallah. Beliefs of Sahaba on seeking help from Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Suratul Nisa, ayat number 64. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahima. The mafhum is, Allah says, O people, when you commit sin, go to the holy court of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. The people who had committed sins, they should come to your court. Ja'uka, they should come to your court, O my Habib. Now if I say, I want to go to the residence of Janab Haji Amin Sahab, my intention will be that I am going to Haji Amin's house. Can I say I am just going, but purpose is to visit Haji Amin? My intention should be I am going to visit Haji Amin at his home. नजदी कहता है कि हुजूर के इरादे से मदीना शरीफ मत जाओ, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के इरादे से जाओ, सवाब ज्यादा मिलता है. बेवकूफो, सवाब मिलता ज्यादा हुजूर के सदक़े में. हम तो हुजूर के लिए जाएंगे, बिकॉज हज भी अल्लाह ने दिया तो हुजूर के सदक़े में दिया. हमने अल्लाह को पहचाना भी हुजूर के सदक़े में. ईमान तो हुजूर के सदक़े में हमें अल्लाह ने दिया. So we will go with the intention, Ya Rasulullah, we are coming to visit you. Because in the hadith it is said, Man zarani muta'ammidan kana fi jawari yawm al-qiyamah. The one who visits with the sole intention of visiting me, he will be besides me on the day of judgment. Another narration, Man ja'ani za'iran la ta'maluhu hajatun illa ziyarati. The one who comes to visit me for my ziyarah without any other intention, on the day of judgment I will do shafaat for him. So if you want shafaat, if you want to be beside our Nabi on the day of judgment, that is free from worries, whenever Allah grants to visit Medina, go with the intention, Ya Rasulullah, I am coming to visit you. Lekin ye log isko nahi mante. So ja'uka, they should come to you. That means with the intention of coming to you. So intention towards the Prophet is proven from this verse of the Holy Quran. Now they say, no. This verse is applicable only during the worldly life of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Okay, we don't want to argue. We have answers. But let us make it short. अगर आज ये बिलीफ रखा तो क्या हुआ कि आज भी हुजूर के पास जाना चाहिए? नहीं, this is haram, this is bidat. Okay. Now your Imam Ibn Kasir has recorded this narration. अब उनको हराम कहो, हराम कम करने वाला, उनको बिदअती कहो, नहीं कहेंगे. इब्न कसीर में एक रिवायत है कि एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कब आए? हुजूर के दुनिया से पर्दा करने के बाद आए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह हैज कमांडेड अस, इफ वी कमिट सिंस वी शुड कम टू यू एंड वी शुड आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह. And when you intercede, wastaghfar lahumur rasul, when Rasul intercedes, you will surely find Allah most forgiving. Lawajadullah tawwabar rahima. So Ya Rasulullah, that person says, I have committed sins. Now I have come to you, Ya Rasulullah. And this is the command of Allah that I should come to you. Now I am asking you, Ya Rasulullah, to intercede on behalf of me because Allah says, wastaghfar lahumur rasul. So later, thumman sarafal a'rabiyu, that person, he went, and then the narrator says,
फ़रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे नींद का गलबा हुआ या मेरी आंखें सोने लगी, नींद का गलबा हुआ, मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, फिन नौम, सोते हुए ख्वाब में हुजूर को देखा। या उतुबी, उनका नाम उतुबी था जो रिवायत करते हैं, ए उतुबी, उस आराबी ने हक कहा है, उसने सच कहा है कि अल्लाह के बारगाह में माफी मेरे दरबार में आकर मांगो, मैं शफात करूं। तो उसने सच कहा, उसको जाके खुशखबरी सुना दो, अन्नल्लाह क़द गफ़र लह, अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी है, ये खुशखबरी सुना दो। एंड मेरे चश्मे आलम से छुप, एंड यू नो दैट, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। एंड यू नो the Turkish construction in Madinatul Munawwara, in Jali Mubarak, these terms are written, या खैर मन दुफिनत बिलक़ाए अज़मुहु। ये उस आराबी ने जो अशार पढ़े ना कि या रसूल अल्लाह, you are the best among those who are living in the world of आखिरah, in the barzakh, and या रसूल अल्लाह, I have come to you because your court is such that you are blessing, you are a generous person या रसूल अल्लाह। विसाल के बाद हुजूर को या कह के पुकारते हैं और हुजूर को बख्शने वाला, करम फरमाने वाला, यानी वसीला होने वाला, शफात करने वाला, करम फरमाने वाला, अता करने वाला, ये आराबी फरमाते हैं। और इब्ने कसीर ने इसको लिखा है और ये अशआर जाली मुबारक में आज भी लिखा हुआ है। लेकिन देवबंदी नजदी इसको शिर्क कहते हैं। लेकिन इसके बाद देखें, इंग्लिश वर्जन में इस पूरी रिवायत को इस आयत के तहत से हटा दिया। क्यों? ये साबित हो जाएगा तो मानना पड़ेगा कि हुजूर दुनिया से पर्दा करने के बाद या रसूल अल्लाह भी कह सकते हैं, वसीला भी ले सकते हैं, शफात मांग सकते हैं, हुजूर से कह सकते हैं या रसूल अल्लाह आप हमारे लिए बख्शिश की दुआ मांगे, कब? विसाल के बाद कह सकते हैं। और ये इसको नहीं मानते, तो जो ये नहीं मानते, नहीं चाहते कि आप इसको मानो, इसलिए इस हदीस को भी पूरा किताब से ही हटा दिया गया है। और भी सब्जेक्ट है मौलूद के बारे में, इब्ने तैमिया ने क्या कहा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला तो हम बताएंगे। माई एडवाइस टू द यूथ, never ever refer to the book of the scholars who follow Wahhabism, even if they write about Ghawthul Azam Sheikh Abdul Qadir Jilani रहमतुल्लाह। क्यों? जो शख्स कुरान की तफसीर से खेल सकता है, जो हदीस से खेल सकता है, वो गौसे पाक के बारे में भी झूठी बातें आपके जहन में डाल सकता है। Whatever books they give, don't ever trust them. Why? They are playing with the hadith of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Then what is the solution? Follow the ulama of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. And for this purpose there are many institutes, and especially, mashallah, I like this institute very much, As-Suffah Foundation. They have given you the opportunity to learn the Aqidah of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. They have given the opportunity to our sisters to learn the Aqidah of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Send your children here, send your children to other Sunni madaris. Never ever look for the facilities and send them towards the madrasas run by Wahhabis. Why? A person, he may be a poor person, but if he leaves this world in the state of Iman with the love of Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam, he is the richest person. And a person can be a richest person if he doesn't have the love of our Nabi, he is the poorest person. तो हमें ईमान देखना है, हुब्बुन नबी देखना है, जहाँ हुजूर की मोहब्बत, जहाँ सहाबा अहले बैत और औलिया की मोहब्बत, वही हमारा मदरसा। और जहाँ ये चीज़ नहीं, कितनी भी फैसिलिटीज़ हो, हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं। Educate your children from now onwards to be firm on the Aqidah of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. May Allah Ta'ala grant all of us the firmness in our Iman, grant all of us the true love of His Habib Sallallahu Alaihi Wasallam. May Allah instill the true love of His awliya
in our hearts and in the hearts of our offspring until Qiyamah. May Allah grant all of us a life in the state of Iman, the death in the state of Iman, and the vision of Sayyiduna Qutbul Aqtab Shaykh Abdul Qadir Jilani at the time we leave this world. Ameen ya Rabbal Alameen. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.